یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے. اردو خبروں کے ساتھ میں اشتیاق ملک. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیراعظم نے سول سروسز ڈے کے موقع پر سرکاری انتظامیہ میں بہترین کارکردگی کے لیے 2021 کے ایوارڈ کیا تھا. ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے 4 IAS افسران شامل. CBI نے جموں کشمیر میں ہیلتھ انشورنس اسکیم اور بجلی پروجیکٹ کے ٹھیکوں میں مبینہ بے ضابطگیوں کی پاداش میں ملک کے 14 مقامات پر چھاپہ مار کارروائی دی انجام. مالوا بارامولہ میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان جھڑپ میں لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ ہلاک، 3 فوجی اہلکار زخمی. اور دہشت گردی کا خلا کما کرنے کے لیے پورے عزم اور لگن کے ساتھ کام کرنے کی NIA کو وزیر داخلہ کی تلقین. خبریں تفصیل کے ساتھ. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کی یکجہتی اور اتحاد کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا ہے. آج سول سروسز ڈے کے موقع پر پبلک ایڈمنسٹریشن میں شاندار کارکردگی کے لیے وزیراعظم کا ایوارڈ عطا کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی تعمیر ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ملک پہلے کے منتر کے ساتھ جدت طرازی کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ ہر سول سرونٹ کو چاہے کہ وہ بھارت کو ایک نئی بلندی تک لے جائے. نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت کے کام کاج میں اصلاحات مقصد ہونا چاہیے اور سول سرونٹس کو عام لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے مقصد سے کام کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بھارت کی آزادی کے 100 سال مکمل ہونے کا موقع ایک انتہائی اہم لمحہ ہونا چاہیے اور اگلے 25 سال کو سنگل ٹائم یونٹ کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے ہر ضلع کو اگلے 25 سال کے لیے اپنے مقاصد طے کرنے چاہیے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے آج سول سروسز ڈے کے موقع پر سبھی سول سرونٹس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ سول سرونٹس نے بھارت کے ایک سرکردہ ملک کے طور پر ابھرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. انہوں نے ان سے زور دے کر کہا کہ وہ اسی طرح لگن اور عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ ملک کی خدمت کرتے رہے جیسا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے تلقین کی ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن میں بہترین کارکردگی کے لیے ایوارڈ پانے والوں میں جموں کشمیر کے 4 IAS افسران بھی شامل ہیں. ان میں سماجی بہبود محکمے کے سیکرٹری شیتل نندا اور 3 ڈپٹی کمشنرز ڈاکٹر پیوش سنگلا، انشول گرگ اور بصیر الحق شامل ہیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے ایوارڈ پانے والے ان افسران کو مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے سول سروسز ڈے کے موقع پر تمام سول سرونٹس اور ان کے کنبوں کو مبارکباد دی ہے اور کہا کہ ہمارے سول سرونٹس نے ترقی کی رفتار تیز کرنے اور ترقیاتی عمل کو شمولیاتی بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ آفیسرز لگن اور عزم کے ساتھ قوم کی خدمت کرنا جاری رکھیں گے. CBI نے جموں کشمیر امپلائیز ہیلتھ کیئر انشورنس اسکیم اور کیرو پان بجلی پروجیکٹ کے سول کاموں کے کنٹریکٹ میں مبینہ بدعنوانی کی پاداش میں آج ملک کے 14 مقامات پر چھاپہ مار کارروائی انجام دی. ان میں سری نگر اور جموں کے ساتھ ساتھ دلی، ممبئی، نوئیڈا، تریوندرم، کیرلا اور دربھنگہ بہار شامل ہے. CBI نے JNK امپلائیز ہیلتھ کیئر انشورنس اسکیم کا ٹھیکہ ایک نجی کمپنی کو دینے اور سال 2017-18 میں تقریباً 60 کروڑ روپے واگزار کرنے اور 2019 میں کیرو پن بجلی پروجیکٹ کے سول کاموں کا کانٹریکٹ ایک پرائیویٹ فرم کو دینے میں مبینہ بے ضابطگیوں کی پاداش میں جموں کشمیر سرکار کی استدعا پر 2 الگ الگ کیسز درج کیے ہیں اور انہی کی بنا پر آج کی کارروائی انجام دی گئی. شمالی کشمیر کے بارامولہ ضلع میں ملیٹنٹوں اور حفاظتی عملے کے مابین چھڑ گئی جھڑپ میں لشکر طیبہ کا ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جبکہ 3 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. یہ جھڑپ بارامولہ ضلع کے مالوا علاقے میں آج الصبح اس وقت شروع ہوئی جب علاقے میں ملیٹنٹوں کی موجودگی کے بارے میں ملی اطلاع کے بعد فورسز نے تلاشی کارروائی شروع کی. حفاظتی عملے کی کارروائی میں 2 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا جن میں لشکر طیبہ کا اعلیٰ کمانڈر یوسف کانٹو شامل ہے. گولیوں کے تبادلے میں 3 فوجی اہلکاروں کو معمولی چوٹیں آئی. مہلوک ملیٹنٹوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود سمیت قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا ہے. دریاستان پولیس نے انٹرنیٹ استعمال کرنے والے سبھی افراد سے درخواست کی ہے کہ وہ اجنبی لوگوں، تقریب کار عناصر یا جرائم پیشہ لوگوں کو وائی فائی یا ہاٹ اسپاٹ فراہم نہ کریں. ایک ٹویٹ میں سری نگر پولیس نے خبردار کیا ہے کہ مجرموں، دہشت گردوں یا ان کے ساتھیوں کو وائی فائی یا ہاٹ اسپاٹ کے ذریعے انٹرنیٹ فراہم کرنے والے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی دہشت گردی کی سب سے بڑی شکل ہے اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے
इसका खात्मा बहुत जरूरी है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के क्याम के 13 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कही। उन्होंने NIA से कहा कि दहशतगर्दी का किला कमा करने के लिए वो पूरी कुव्वत के साथ काम करे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है और वह भारत से इस बिद्दत को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज ने मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करने वाले इदारों और मुतल्लिका कवानीन को मुस्तहकम किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सरकार NIA को मजबूत व मुस्तहकम करने और बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे तस्लीम किए जाने के लिए हर मुमकिन मदद करने को तैयार है। अक़लियतों के कौमी कमीशन की कायम मुकाम चेयरपर्सन सईद शहजादी ने कहा कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर में अक़लियती तबकों की फलाह और तरक्की व खुशहाली की वादेबंद है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर की हमजहत तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और इस ताल्लुक से मुतअद्दिद कदम उठाए गए हैं। अक़लियतों की बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोजेक्टों का जिक्र करते हुए मौसूफा ने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम यानी PMJVK के तहत 3 करोड़ 14 लाख रुपए की मालियत के 19 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है, जिनका मकसद जम्मू कश्मीर के अवाम को बेहतर सेहत, तालीम और दीगर सहूलियत फराहम करना है। सईद शहजादी 18 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के 4 रोजा दौरे पर आई थी, जिस दौरान उन्होंने अक़लियती ग्रुपों से तबादले ख्याल किया और उनके मामलात सुने। उन्होंने कहा कि जो मसाइल और मामलात उजागर किए गए हैं उन्हें मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में लाया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भट्टागर ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में J&K हैंडीक्राफ्ट्स कॉरपोरेशन और J&K हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की चौथी मुश्तरका मीटिंग की सदारत की। उन्होंने दोनों कॉरपोरेशंस के हुक्काम पर जोर दिया कि वो इन कॉरपोरेशनों में आमदनी पैदा करने के लिए दस्तियाब वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर की दस्तकारी और दीगर रिवायती क्राफ्ट के लिए एक जामिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी तरतीब दी जाए। मशीर जो बोर्ड के चेयरमैन मेहे ने दस्तकारी अशिया की मुनासिब मार्केटिंग की ताकीद की ताकि हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम मसनूआत की मार्केटिंग के दायरे को वसी किया जाए। स्कूली तालीम महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी BK सिंह ने कहा है कि समग्र शिक्षा के तहत रवां साल ऐसे 57 स्कूलों में इमारत तामीर किए जाने को तरजीह दी जाएगी जो बिल्डिंग्स के बगैर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 43 खस्ताहाल इमारतों को भी इस साल तामीर किए जाने पर गौर किया जाएगा। वो आज जम्मू में एक मीटिंग की सदारत कर रहे थे जो साल 2022-23 के लिए समग्र शिक्षा के तहत मनसूबा तरतीब देने के लिए तलब की गई थी। मीटिंग के दौरान समग्र शिक्षा के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने जानकारी दी कि 2021-22 में समग्र के तहत 1117 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिसमें से 783 करोड़ रुपए की रकम मुख्तलिफ नौइयत की 356 कामों पर खर्च की गई है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि अब तक 29 गर्ल्स हॉस्टल और 59 KGB की इमारत मुकम्मल की गई है और इनमें से ज्यादातर इदारों का इफ्तिताह हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया है। मीटिंग में 2022-23 के लिए 2926 करोड़ रुपए का मंसूबा भी पेश किया गया, जिस पर तमाम चीफ एजुकेशन अफसरों के साथ गौर-व-ख़ौज़ किया गया। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत 187 करोड़ 7 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। 12 से 14 बरस की उम्र के जुमरे में 2 करोड़ 53 लाख से ज्यादा अफराद को पहला टीका लगाया जा चुका है। मुल्क में कोविड के जेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 13,433 है। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,380 नए मामला सामने आए हैं, जबकि 1,231 मरीज शिफायाब हुए हैं। सरदस्त मुल्क में सेहतियाबी की शरह 98.76% पर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 10 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 5 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि दीगर 5 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 8 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लाल किले पर श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वो इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करेंगे और एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। आकाशवाणी के नुमाइंदगार ने बताया है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा इंतजामी कमेटी के इश्तराक से मरकजी सरकार ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश गुरु पर्व के मौके पर शानदार तकरीब का आगाज का लाल किला पर हुआ। वजीर दाखिला अमित शाह ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर शहरी गुरु तेग बहादुर जी का बड़ा एहतराम करता है और उनकी कुर्बानी से बखूबी वाकिफ है।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व अवाम को मुबारकबाद पेश की है। मुबारकबादी के एक पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, आपसी भाईचारे, मसावत और सच्चाई के अलमबरदार है और उनकी तालीमात बनी नवा इंसान को हक व सदाकत और एक ईमानदार जिंदगी गुजारने की रहनुमाई करती रहेंगी। उन्होंने इस मौके पर जम्मू कश्मीर में दायमी अमन, मेल मिलाप और तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पार्टी के अकलियती सेल के सरबराह जगदीश सिंह आजाद और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने भी श्री गुरु तेग बहादुर जी की यौम पैदाइश पर जम्मू कश्मीर की सिख बरादरी को मुबारकबाद दी है। माह रमजान का मुकद्दस महीना मजहबी जज्बे के साथ जारी है और आज इस बाबरकत महीने की 19 तारीख है। मुतबरक माह रमजान 3 अशरों पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले 2 अशरे इख्तिताम को पहुंच गए हैं, जबकि तीसरा अशरा जो दोज़ख की आग से आजादी दिलाता है कल से शुरू हो रहा है। इस अशरे की फजीलत बयान कर रहे हैं मौलवी अब्दुल कयूम जाड़ो। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये सुन्नत को बतफ़ैल हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजान अता फरमा। इसमें 3 हिस्से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। एक हिस्सा रहमत ही रहमत, दूसरा हिस्सा मगफिरत और तीसरा आज़ादी आज़ादी जहन्नम है। जो उम्मत के तबके में, उम्मत में 3 तबके हैं। एक तबका जो नेकोकार तबका होता है, उसके लिए ये रहमत ही रहमत है। एक तबका जिसमें गुनाह भी हैं और सवा नेकियां भी हैं, उसके लिए ये मगफिरत का रब महीना है। और तीसरा तबका गुनाहगारों का, जिनमें गुनाह ही गुनाह है, उनके लिए आखिरी अशरा आज़ादी आज़नारी जहन्नम है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अगर मैं रबी कदर भी आखिरी अशरे में, आखिर जुम्मतुल विदा भी आखिरी अशरे में, लैलतुल जायज़ा भी आखिरी अशरे में, अगर मुझे शबी कदर मिले है अल्लाह के हबीब, मैं उस वक्त क्या दुआ करूँ अल्लाह से। और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार ने आने वाली अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर आज जिला गांधरबल का तफसीली दौरा किया और वहां मुख्तलिफ यात्रा ट्रांजिट कैंपों का मुआयना किया। उन्होंने मौके पर ही मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने उन्हें यात्रियों के ठहरने की गुंजाइश में इजाफा करने और इनके आरामदेह कयाम के लिए दीगर सहूलियात बढ़ाने के लिए किए जा रहे इकदाम के बारे में जानकारी दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि इस बार की अमरनाथ यात्रा में तकरीबन 8 लाख यात्री आएंगे, जिसके चलते उन्होंने जिला इंतजामिया गांधरबल को यात्रियों के कयाम के लिए तमाम सहूलियात को यकीनी बनाने की हिदायत दी। बाद में नीतीश्वर कुमार ने सुंबल यात्रा ट्रांजिट कैंप जाकर वहां अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन आज अहमदाबाद में गांधी आश्रम गए और उन्होंने वहां चरखा भी काटा। वो भारत के 2 रोजा दौरे पर आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। रियासत के गवर्नर, वजीर आला और दीगर शख्सियात ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। बोरिस जॉनसन का हवाई अड्डे से होटल तक के 4 किलोमीटर तवील रास्ते में शानदार खैरमकदम किया गया। और अब आखिर पर मौसम से मुतल्लिक जानकारी। श्रीनगर समेत वादी के मैदानी इलाकों में आज सुबह से गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि बाज़ बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी भी हुई। मौसमी सूरत हाल में आई इस तब्दीली के नतीजे में आज खासी ठंड महसूस की गई। मौसमियात महकमे ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 34 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 15.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो सामने इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। समाप्त कीजिए तबसरा।